बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूवर्स। आज का हमारा टॉपिक है रिसर्च से रिलेटेड। रिसर्च, देन सोर्सेज ऑफ नॉलेज, देन टाइप्स ऑफ रिसर्च एंड रिसर्च डिज़ाइन एंड टाइप्स ऑफ रिसर्च डिज़ाइंस। Let's start. What is research? First define. Research is a systematic process, investigation to find ultimate truth, to reach new conclusion. रिसर्च एक ऐसा प्रोसेस होता है, सिस्टमेटिक प्रोसेस है. अ सिस्टम इंक्लूड्स नॉर्मली इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट. Systemized. Another definition is research is systemized. Then formal mean it use of scientific methodology, it's a methodology and voyage of discovery. These are the definition of research. The next is educational research. As the name suggests, educational research may be defined as the research related to the field of education. ऐसी रिसर्च जो एजुकेशन की फील्ड से रिलेटेड हो उसको एजुकेशनल रिसर्च कहेंगे. हेयर आर द इट इज़ रिलेटेड टू द स्टूडेंट लर्निंग, टीचिंग मेथड्स, इंस्ट्रक्शन एंड ट्रेनिंग्स, ऑल अबाउट एजुकेशन. Next is characteristics of educational research. It's very important. All the researches are systematic, then logical. Logical mean based on reasoning or critical thinking. The next is empirical, mean based on experiments. Reductive, presenting complex analysis to simple, mean complex information को simple में, ये रिसर्च की एक खूबी होती है. देन रेप्लिकेबल मीन इट कैन बी यूज्ड इन नियर फ्यूचर फॉर फर्दर प्रिडिक्शन, मतलब ये मज़ीद किसी रिसर्च के लिए भी यूज़ की जा सके तभी वो एक सही रिसर्च कहलाएगी. नेक्स्ट इज़ रिसर्च फिलासफी. व्हाट इज़ अ फिलासफी? सेट ऑफ बिलीव्स, assumptions and principles that guide the researcher's approach. जो रिसर्चर की थिंकिंग एक फ्रेमवर्क में रहकर वो आगे बढ़ता है उसको फिलासफी कहा जाता है. These are simply set of beliefs or assumptions and the principles which a researcher uses while his research. The most famous philosophy of research is positivism. Positivism, the term was coined by this philosophy was coined by Auguste Comte in mid-90s. It is all about your universalization of facts. It means that the facts are same for all wherever someone is present. कोई जहाँ भी हो उसके लिए एक चीज़ सेम प्रोवाइड करना, ये पॉजिटिविज़म की एक खासियत है. नेक्स्ट, रिसर्च शुड बी ऑब्जेक्टिव, एम्पिरिकल एंड वैल्यू फ्री. वैल्यू फ्री मीन इट शुड, ऑब्जेक्टिव एंड एम्पिरिकल मीन दैट यहाँ पे एक्सपेरिमेंट्स हों, ऑब्जेक्टिव सेम फॉर ऑल हो, एंड वैल्यू फ्री मीन here is no subjectivity or personal interpretations are not present in this research. Next, the best example is it uses quantitative methods, that is 2 plus 2 is equal to 4. Here are some characteristics of positivism. The next philosophy is interpretivism. This was given by Kant. Opposed to it is simply opposed to positivism, as positivism uses objective and objectivity, and this is subjective in nature. Research should be subjective, context based. What are the circumstances? And with interpretation, as someone interprets, and it is it is not value free, it is valueful. Here the uses of qualitative methods, for example 2 plus 2 is not is equal to 4 everywhere, it may be 5 or 6, that is called in education synergy. Interpretivism and positivism are just opposite to each other. The next philosophy is critical theory. Our philosophy is given by the Frankfurt School. This is based on social criticism. It talks about power structures and social injustice. Dominating structures generate problems by social inequality. The main idea or thought of the philosophy is that there is
unfair distribution of resources among the society and power structures and ruling class उसने जो है डोमिनेट किया हुआ है marginalized और poor ग्रुप्स को और that is the cause of the social problems and this is called critical theory as in the rain poem written by William Davies is the expression of this theory. That is there are upper leaves and lower leaves. Upper are like the ruling class and lower are like the marginalized groups and all the problems are due to their dominance in the society by ruling the ruling class. Next is pragmatism. The word pragma means action purely related to problem solving and practical solutions. Context based solutions are also included in it. Rejects impractical ideas को ये pragmatism reject करता है. Next is the postmodernism. Postmodernism is based on traditional assumptions, what people think about something of special area or certain area. Traditional assumptions हमारे पास ये होती हैं. Then emphasizes reflexivity, how someone feels or think about something. Human as center of all realities. Human rejects metaphysics. ये metaphysics को reject करता है. Postmodernism and progress and innovation को support करता है. Self-reflexivity is the major concern of postmodernism. Next is research process and steps of research process. The first step and important is identify a problem that proves to be the base of the research. Research start इसीलिए की जाती है क्योंकि कोई प्रॉब्लम आ जाता है, उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं. देन ब्रॉड लिटरेचर व्यू हम करते हैं कि पहले जो इसके बारे में रिसर्चेस की जा चुकी हैं उनको हम स्टडी करते हैं. देन वी डेवलप आवर हाइपोथेसिस फार्मूलेशन करते हैं. नेक्स्ट उसके बाद हम रिसर्च एंड सैम्पल डिज़ाइंस को सिलेक्ट करते हैं. देन डाटा कलेक्शन, डिफरेंट टेक्निक्स के ज़रिए डाटा कलेक्ट किया जाता है. देन उस डाटा को एनालाइज करते हैं और हाइपोथेसिस को भी टेस्ट करते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ द एनालिसिस ऑफ द डाटा एंड फाइंडिंग्स then generalizations are made and interpretation and reports are written. So this is a research full research process. Next is definition of knowledge according to different philosophers. The first one here should be Socrates, but here is Plato in the slide. So Plato defines knowledge is not simply the accumulation of information or facts, but a deeper understanding of the fundamental concepts and principles underlying reality. तो जस्ट आप इंफॉर्मेशन इकट्ठी ना करें, आपको जो कंसेप्ट्स हैं रियलिटी से रिलेटेड वो आपको उनकी डीपर अंडरस्टैंडिंग में हो, ये कहना है प्लाटो का, अफलातून का. देन सोक्रेटिस ये था, तो इससे पहले स्लाइड मुझसे आगे पीछे हो गई थोड़ी सी. तो अकॉर्डिंग टू सोक्रेटिस डिफाइंस नॉलेज एज एब्सोल्यूट ट्रूथ. ही बिलीव्स एवरीथिंग इन द यूनिवर्स हैज़ इनेट कनेक्शन विद अनदर थिंग एंड ही सेज दैट वन थिंग कैन बी नोन पोटेंशली नोन बाय द रिलेशनशिप विद द अदर थिंग्स. कि एक चीज़ का जो रिलेशन है वो दूसरे के साथ है और एक चीज़ को हम ट्रेस करते हुए दूसरे हक़ाइक़ तक पहुंच सकते हैं, ये कहना है सोक्रेटिस का. देन अरिस्टोटल हमारे पास है. अरिस्टोटल सेज दैट नॉलेज मस्ट बी ऑब्जेक्टिवली ट्रू एंड नेसेसरी. इट मस्ट subjectively be seen as the true cause has to be known and the necessity of the causal connection must be perceived. The most important criterion of knowledge is objective necessity. Here objective necessity means that it should be reality based knowledge. Then there are sources of knowledge कि हम knowledge कहाँ कहाँ से gain कर सकते हैं. First one source is sense perception through our senses, traditions from the past generations, authority from authorized persons, expert opinions who know better or better understanding.
then others rationality through logical thinking and reasoning and critical thinking. Then there is magic, imitative and contagious magic. Then scientific method, that's very famous. So first is perception, the ability to see, percept the things, hear, become aware of some thing through the senses, the way in which something is regarded, understood or interpreted. The perception, as one gains knowledge from his five senses, as 75% knowledge is gained from observation. So perception, in this example, they are having different perceptions and gaining knowledge according to their perception. The next one source is revelation, as it is considered the ultimate true source of knowledge. रेविलेशन वही को कहते हैं जो पैगंबरों पर अल्लाह ताला की तरफ से डायरेक्ट नॉलेज जो आता है उसको वही कहा जाता है, कुरान और हदीस का जो इल्म है. दिस नॉलेज इज़ कंसिडर्ड द अल्टीमेट सोर्स ऑफ ट्रूथ एंड गाइडेंस फॉर मुस्लिम. इट्स वेरी इजी. देन इंट्यूशन. इंट्यूशन सिंपली उर्दू में हम इसको वजदान कहते हैं. दिस सिंपली मीन्स दैट इंट्यूशन इज़ अ वे ऑफ नोइंग समथिंग दैट one can't really explain because it transcends ordinary sense experience or reason. Intuition may occur as sudden arrival of solution. अचानक से आपके माइंड में बग़ैर सोचे समझे कोई सलूशन आ जाए तो उसको कहा जाता है इंट्यूशन. इसकी बेस्ट एग्जांपल हिस्ट्री में जो है वो ये है कि अर्शमीदस एक एक्सपेरिमेंट कर रहा था. ही वाज ट्राइंग टू फाइंड द प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटिंग बॉडीज़. तो एक दिन अचानक वो ही वाज टेकिंग अ बाथ, नहा रहा था, तो उसके माइंड में एक आ गया, वो खुशी से चिल्ला उठा, आई गॉट इट, आई गॉट दैट. तो मे बी ये एक हो सकती है एग्जाम्पल ऑफ इंट्यूशन. अथॉरिटी, ऑथराइज्ड पर्सन से जो हम नॉलेज हासिल करते हैं उसको अथॉरिटी कहा जाता है. अथॉरिटी इज़ अ सोर्स ऑफ नॉलेज, इज़ बेस्ड ऑन द बिलीव दैट सर्टन इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशन पोजेसेस स्पेशलाइज्ड नॉलेज. उनके पास स्पेशलाइज्ड नॉलेज होता है स्पेसिफिक फील्ड में. तो जब स्पेसिफिक नॉलेज आपको चाहिए होगा तो आप अथॉराइज अथॉरिटी से रजू करेंगे. ओनली अथॉराइज पर्सन ऐसा इल्म आपको दे सकता है. इशू ऑफ सर्टिफिकेट, आपने किसी एक ख़ास फील्ड में जाना है, ड्राइविंग का लाइसेंस, आपने उसकी इन्फॉर्मेशन लेनी है, तो जस्ट अथोराइज पर्सन आपको वो ज़्यादा बेटर वे में समझा सकते हैं, आपको प्रोवाइड कर सकते हैं. इस तरह लॉ की एजुकेशन के हवाले से आप भी इसी तरह है कि वहाँ पर भी आप लॉयर्स से मिलेंगे तो वो आपको बेटर वे में समझा सकते हैं. The next source of knowledge is expert opinions. Sometimes in search of knowledge, one can take the testimony of experts who, because of their intellect, training, expert experience or aptitude, natural abilities की वजह से भी आप किसी से एक्सपर्टीज़ जो है वो लेते हैं, राय लेते हैं. तो आर बेटर इन्फॉर्म्ड पीपल जो होते हैं जिन्हें ज़्यादा ज़रूरी नहीं कि इनके पास अथॉरिटी भी हो, तो इसको एक्सपर्ट ओपिनियन इसके नाम से ज़ाहिर है इसको कहा जाता है. देन इज़ रैशनल. इन दिस व्यू knowledge is seen as a product of human mind's ability using logical reasoning and critical thinking skill. से जो आपका knowledge आता है उसको आप क्या करते हैं, रैशनल कहते हैं. वाइज, सेंसिबल अंडरस्टैंडिंग्स हैं ये हमारे पास. यूजिंग लॉजिकल सच एज डिडक्शन, इसमें हम यूज़ करते हैं, इंडक्शन यूज़ करते हैं एंड एबडक्शन यूज़ करते हैं. तो नॉर्मली जो है वो डिडक्शन क्या होता है, जर्नल टू स्पेसिफिक. आप जर्नल सर्कमस्टांसेस आप लेते हैं. तमाम परिंदे जैसे उड़ते हैं तो चिड़िया उड़ती है इसलिए वो भी एक परिंदा है. ये डिडक्शन की एक एग्जांपल है. डिड्यूस करते हैं आप, अखज़ करते हैं, कुछ चीज़ों को आप एलिमिनेट करके एक रिज़ल्ट तक पहुंचते हैं, इसको डिडक्शन कहा जाता है. इंडक्शन का मतलब है शामिल करना. ये स्पेसिफिक टू जर्नल होता है. आपने एक ख़ास चीज़ को स्टडी करते करते आपने जर्नलाइज कर दिया रिज़ल्ट्स. आपने एक परिंदे को देखा वो भी उड़ता था, उसके पर होते थे, तो आपने एक रिज़ल्ट दिया कि जिनके भी तमाम जो परिंदे हैं वो उड़ सकते हैं. ये आपका हो गया
induction specific to general and abduction is based on probable decisions, यानी जो probable से मुराद है जो मुमकिन तरीन decisions होते हैं उसको abduction कहा जाता है। इसकी बेस्ट एग्ज़ाम्पल ये है कि जब हम गेसिंग टाइप कुछ प्रोबेबिलिटी क्रिएट करते हैं, मिसाल के तौर पर एक बच्चे ने अगर एक लाइक बच्चा है और उसने कम मार्क्स हासिल किए हैं तो हम उसके बारे में एक प्रोबेबल डिसीजन जो है या रिज़ल्ट निकालते हैं कि ये बीमार होगा या कोई इसके साथ जेन्युइन रीज़न होगी। तो इस तरह से हम मोस्ट प्रोबेबल डिसीजन निकालने जजमेंट करने का या डिसीजन निकालने का नाम एब्डक्शन होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल साइंटिफिक इंक्वायरी में ये यूज़ होते हैं। तीनों मैंने आपको एग्ज़ाम्पल भी दे दी। नेक्स्ट हमारे पास है ट्रेडिशंस, ऐसा तमाम सोर्स ऑफ नॉलेज जो हमें अपने आबा व अजदाद से और जनरेशन टू जनरेशन जो पास होता है। कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं हमारे पास, उसके बाद कस्टम एंड बिलीव्स हैं, और ये एक ऐसा सोर्स है विच इज़ अ वे टू प्रिजर्व एंड ट्रांसमिट नॉलेज। इसी की मदद से ही तो नॉलेज जो है वो प्रिजर्व रहता है, एक जनरेशन से कुछ चीज़ें दूसरी में ट्रांसफ़र होती हैं, जैसे हमारे पास सिविलाइजेशंस आई हैं। नेक्स्ट इज़ स्टेप्स ऑफ साइंटिफिक मेथड is based on these 6 steps, that is observation, then is question or problem, then hypothesis development, then experiments, then analysis on the results, and final conclusion, that is called scientific method. Correlational research, it describe as the name suggest, इसके नाम से ही जाहिर है correlation से मुराद है दो चीज़ों के दरमियान relation। So correlational degree describes the degree to which two or more quantitative variables are naturally related. There is no manipulation of variables in correlational research. Ordinal scale of measurement, it's another topic. Ordinal, nominal, then ratio and interval scale. It uses correlation coefficient, consistent relation. हाँ, अगर इसमें कोई आप कंसिस्टेंट दो चीज़ों के दरमियान, दो वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशन देखते हैं उसकी वजह जाने बगैर, तो उसको आप फ्यूचर प्रेडिक्ट के लिए यूज़ कर सकते हैं। इट्स इम्पोर्टेंट एलिमेंट। The next is correlation. What is correlation? Relation between two variables. It may be positive. It means that if one variable in high with high mean if one variable increases, the other also increases. It's a positive relation. Low with low, if one decreases, other also decreases. Negative, high with low, if one increases, other decreases, and if one decreases, other increases. That is inverse relation. And zero correlation, there is no relation at all. Coefficient ranges from -1 to +1. इंटरप्रिटेशन भी मैं आपको इसकी बता देता हूँ। आप एक नंबर लाइन की तरह ड्रा करें, -1 से आप 0, देन +1, 0.5 and -0.5. -0.5 to -1 is a strong negative relation, and to 0 is weak negative relation. +5 to +1 is strong correlation, and 0 to 0.5 is weak or relation, and 0 mean no correlation at all. Here is the interpretation of correlation. Correlation versus causation. Correlation only assesses relationship between variables, and there may be different factors that lead to the relation. Causation may be the reason for the correlation. जब आप काज को फाइंड करते हैं, एक चीज़ दूसरे पे असरअंदाज हो रही होती है, हम काज को जब पढ़ेंगे ये किस वजह से हो रहा है, बट इट इज़ नॉट ओनली द पॉसिबल
एक्सप्लेनेशन। काज में भी रीज़न फॉर कोरिलेशन, ये भी हो सकता है, लेकिन जो कॉजेशन एक्चुअली वो ये है कि उसमें आप काज को भी स्टडी करते हैं। कोरिलेशन में आप जस्ट रिलेशन देखते हैं, क्या कोरिलेशन है या नहीं है, कौन से फैक्टर की वजह से है, ये आप वहाँ पर स्टडी नहीं करते। नेक्स्ट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। As the name describes, it describes something. It is used to describe a phenomena, something, some event. It is done in present, ये हाल में मौजूदा टाइम में की जाती है। डिस्क्राइब्स, ये उसको बयान करती है। व्हाट इज़ अंडर स्टडी। आंसर्स, हाउ, कैसे। व्हाट, क्या। व्हेन, कब। एंड वेयर, कहाँ। बट इज डजंट आंसर वाई, ये क्यों का जवाब नहीं देती। देयर आर नो मैनिपुलेशन इन डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, और इट इज़ क्वांटिटेटिव इन नेचर, but the techniques used in descriptive research may be qualitative, as survey may be qualitative and other studies may also be qualitative, but this research is quantitative purely in nature. Here are research methods, that is past, present and future. So past is historical method, history, as history is the past, is related to the past. Present, descriptive methods, and future is experimental research where independent variables are manipulated. Survey method. What is a survey? सर्वे एक ऐसा मेथड होता है जिसमें डाटा वहाँ से कलेक्ट किया जाता है जो एक प्री डिफाइंड आपने ग्रुप बना दिया, उसी में से आपने डाटा को कलेक्ट करना होता है। फिर सर्वे की टाइप्स अगर आप देखेंगे तो इसमें स्कूल में आप सर्वे कर सकते हैं, पब्लिक प्लेसेस पे कर सकते हैं, और जॉब एनालिसिस, कहीं पे जॉब है उसकी आप एनालिसिस कर सकते हैं। फॉलो अप स्टडीज़, कोई लोग जो हमारे इदारों से पास आउट हो गए आप उनसे डाटा इकट्ठा कर सकते हैं। और कम्युनिटी सर्वे जो साथ हमारे कम्युनिटी वाक़े आप उनसे भी कर सकते हैं। और इसमें डॉक्यूमेंट्री एनालिसिस हैं, तो जो कंटेंट एनालिसिस और डॉक्यूमेंट्री एनालिसिस है ये बिल्कुल हिस्टोरिकल रिसर्च की तरह ही आपने डाटा इकट्ठा करना होता है, लेकिन इसमें और हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड में फ़र्क ये होता है कि हिस्टोरिकल जो मेथड है वो पास्ट में यूज़ होता है और कंटेंट एनालिसिस मेथड जो है वो प्रेजेंट में यूज़ होता है। नेक्स्ट हमारे पास कोरिलेशन मेथड्स हैं, अभी हमने डिस्कस किया कि कोरिलेशन जो है पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। उसके बाद डेवलपमेंटल मेथड हमारे पास, इसको हम बाद में डिस्कस। एथनोग्राफिक मेथड जो है इसमें हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो कल्चर की बारे में जो डाटा है जो रिसर्च की जाती है उसको एथनोग्राफिक मेथड कहा जाता है। और यहाँ पर हो गया था वो डेवलपमेंटल मेथड जो है हमारे पास के फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक मेथड की डेवलपमेंट देख लें, एक मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक्स में से नोकिया की या सैमसंग की देख लें, आईफोन की देख लें, तो वो डेवलपमेंट चल रही है और ये लॉन्ग एक प्रोसेस होता है जिसमें वो साथ साथ उसको चेक करते रहते हैं कौन से फ़ीचर उसमें ऐड हुए, कौन से उसमें से नेगेट किए गए, तो ये डेवलपमेंटल मेथड कहलाता है। तो फर्स्ट वन इज़ लॉन्गिट्यूडिनल। लॉन्गिट्यूडिनल मीन दैट इट कि हमारे पास जो सैंपल है, जो हमारे पास स्टडी है, वो एक ही चीज़ पे हम करते रहते हैं, बट ग्रुप हमारे पास एक होता है लेकिन लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम स्टडी करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्रॉस सेक्शनल मेथड्स होते हैं डेवलपमेंटल में। क्रॉस सेक्शनल मेथड ऐसे होते हैं जिसमें हमारे पास ग्रुप्स तो डिफरेंट होते हैं बट हम उन्हें स्टडी एट द सेम टाइम कर रहे होते हैं। ट्रेंड रिलेटेड जो है कि हमारे पास अभी जो प्रेजेंट में कौन से ट्रेंड्स चल रहे हैं, डिफरेंट ट्रेंड्स को लाइकिंग डिसलाइकिंग्स हैं लोगों की, उसको चेक करना, ये हमारे पास डेवलपमेंटल मेथड में आता है। Here is example of cross sectional and longitudinal study. Here you can see different groups हैं compared at the same time. cross sectional study है and longitudinal studies हैं time 1, time 2, time 3, और ये 100 of years तक भी longitudinal studies कंटिन्यू रह सकती हैं।
Next is historical research. As the name suggests, history is related to past. जब systematic collection and evaluation of data आप करेंगे और क्या इसकी वजह आपको पता है, एक्सप्लेन एंड अंडरस्टैंड एक्शंस ऑफ इवेंट आर पास्ट। जब आप पास्ट के इवेंट्स को स्टडी करेंगे तो इसको हम हिस्टोरिकल रिसर्च कहते हैं। हिस्टोरिकल रिसर्च क्यों की जाती है? हिस्टोरिकल रिसर्च का मकसद होता है कि आप उसकी बेस पे जो आप प्रेजेंट में आपको कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उनको आप सलूशन ढूंढना चाहते हैं, इसलिए ये की जाती है। और नो मैनिपुलेशन एंड कंट्रोल ऑफ वेरिएबल्स। तो हिस्टोरिकल रिसर्च जैसे हिस्ट्री पास्ट है, गुजर गया, तो आप ना दोबारा हिस्ट्री में जा सकते हैं, ना आप उसके कोई वेरिएबल्स को मैनिपुलेट कर सकते हैं और ना ही आप उसके एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स को कंट्रोल कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल टीचिंग कंडीशन इन 90s की टीचिंग कंडीशन को जब आप स्टडी करेंगे तो आप एक्चुअली हिस्टोरिकल रिसर्च कर रहे होंगे। 3 मेजर स्टेप्स इन हिस्टोरिकल रिसर्च में 3 मेजर स्टेप्स होते हैं। नंबर फर्स्ट इज़ कलेक्शन ऑफ डेटा फ्रॉम प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्स। Number second is criticism of data. One is external criticism and other is internal criticism. Presentation of facts in readable narrative form or generalizations is the third major element or step in historical research. तो लेट्स डिस्कस प्राइमरी सोर्सेज। डाटा को कैसे आप कलेक्ट करेंगे या क्या होता है वो? ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स दैट आर फर्स्ट विटनेस ऑफ अ फैक्ट। फर्स्ट हैंड जो रिकॉर्ड होता है जिसके बारे में आप रिसर्च कर रहे हैं, आप कायदे आज़म के बारे में आप कोई रिसर्च कर रहे हैं, तो उनकी अपने हाथ से लिखी हुई कोई बुक, उनकी हाथ से कोई बनी हुई पेंटिंग, उनके हाथ से बना हुआ उनका अपना किया हुआ कोई काम, तो वो फर्स्ट डेटा के तौर पर आप यूज़ करेंगे। रिटर्न कोई और रिकॉर्डिंग्स भी हो सकती हैं। रिटर्न एंड प्रिजर्व रिकॉर्ड्स हैं चार्टर्स, कॉन्स्टिट्यूशंस, कोर्ट डिसीजंस, ऑटोबायोग्राफीज, डायरीज, पिक्चर्स, पेंटिंग्स, बुक्स एंड अदर रिकॉर्डिंग्स आर may be treated as primary source. Then primary sources are self-based and best evidence, sources of best evidence. So here is repeated slide. Come to the next slide. That is secondary sources of data in historical research provided by the source which was neither direct participant nor witness of the original event. second hand information जो बाद में आपके पास ऐसे सोर्स के ज़रिए से आई जो डायरेक्टली रिलेट नहीं था प्राइमरी डेटा के साथ। दिस सोर्स इज़ हेल्पफुल एज इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द प्राइमरी सोर्स, बट यहाँ पर ज़्यादा चांसेस होते हैं कि ये फॉल्स भी हो सकता है। नेक्स्ट मेजर एलिमेंट ऑफ historical research is internal and external criticism. Internal criticism mean inside the document you have achieved, inside the data you have achieved. क्या उसने वो जो आथर था वो क्या कहने की कोशिश कर रहा था, उसने क्या कन्वे करने की कोशिश की, क्या उसके अंदर कोई वैलिडिटी है, इंटरनल वैलिडिटी या नहीं, तो वो आपने चेक करनी है। एक्सटर्नली हु वाज द ऑथर, कौन था, क्या उसका अपना काम होगा, क्या आपने किसी और सोर्स से तो हासिल नहीं किया। एक्सटर्नली जो व्हाट आर हिज स्पेशल क्वालिफिकेशंस, क्या वो इस चीज़ को लिखने के काबिल भी था या नहीं। एज मोस्ट ऑफ द शेक्सपियर ड्रामास के बारे में एक्सटर्नली जो क्रिटिसिज्म किया जाता है वो यही है कि उनके वो जो ड्रामे हैं वो दरअसल शेक्सपियर था ही नहीं, कोई और था। तो ये हो गया हमारे पास एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म। राइटिंग हिस्टोरिकल रिसर्च जब आप लिखेंगे इफेक्ट तो कुछ खसूसियात को आपने मद्देनज़र रखना है। फर्स्ट इज़ इफ़ेक्टिव हिस्टोरिकल राइटिंग। ऐसी आपने लैंग्वेज यूज़ करनी है कि रीडर पढ़ते हुए ऐसे फ़ील हो जैसे वो पास्ट में है। अभी आपने सल्तनत उस्मानिया का एक ड्रामा आपने देखा था टीवी पे, अर्तगुल,
तो उसकी आप लैंग्वेज अंदाज़ा लगा सकते हैं। हिस्ट्री में वो थोड़ा सा लेकर हमें गए थे। वर्किंग आउटलाइन, सिलेक्शन एंड अरेंजमेंट ऑफ नोट्स, प्रोग्रेशन है विद द हेल्प ऑफ कॉज एंड इफ़ेक्ट रिलेशन आपने मेंटेन रखना है। एम्फेसिस ऑन मेजर एलिमेंट को आपने स्किप नहीं करना। आर्ट ऑफ नरेशन एंड साइंस ऑफ हिस्ट्री, ड्रामेटाइजेशन, रिटोरिक मीन कि आपका जो स्टाइल ऑफ राइटिंग है वो फसीह हो, बलीग होना चाहिए, यानी उसमें ईज़िली आप उसको अंडरस्टैंड कर सकें कोई भी रीडर जो है। स्ट्रेंथ एंड लिमिटेशंस ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च, पहली जो स्ट्रेंथ है कि ये पास्ट के बारे में एक ही टाइप की रिसर्च है जो कि हिस्टोरिकल रिसर्च है। पास्ट में स्टडी करना चाहते हैं तो आप हिस्टोरिकल रिसर्च को ही फॉलो करेंगे। मोर एविडेंसेस मौजूद हैं पास्ट में, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन भी बहुत ज़्यादा हैं। हेल्पफुल फॉर प्रेजेंट, प्रॉब्लम्स को आप जो उसकी बेस पे जो है वो हल भी कर सकते हैं। इंटरनल वैलिडिटी इसमें बहुत कम होती है, बिकॉज हो सकता है कि वो सोर्स ही गलत हो जहाँ से आपने डेटा हासिल किया है। पर्सनल बाइस जो हिस्ट्री को आगे शिफ्ट करते हैं, उनकी पर्सनल बाइसेस वहाँ पे आ सकती हैं, क्योंकि वो बंदा अब मौजूद तो है नहीं जिसने ये बात कही थी। तो रिसर्चर या कोई भी उससे वेरिएबल उसमें चेंजिंग का बायस बन सकता है। ओनली फ्रैक्शनल व्यू ऑफ द पास, सारी हिस्ट्री तो हमारे पास आ नहीं सकती, सिर्फ उसका फ्रेगमेंट आ सकता है। इंटरप्रिटेशन एंड जर्नलाइजेशन इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, क्योंकि सारा पास्ट की बेस पे है तो आप इसे जर्नलाइज नहीं कर सकते जितना भी आपके पास एविडेंसेस हों, बट आप 100% श्योर यहाँ पर नहीं हो सकते। नेक्स्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ एक्सपेरिमेंटेशन। एक्सपेरिमेंटेशन में 3 चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। नंबर फर्स्ट इज़ कंट्रोल, दैट इज़ एक्सट्रेनियस फैक्टर्स, फिजिकल, सिलेक्टिव एंड स्टैटिस्टिकल कंट्रोल, कि आपके पोटेंशियल जो वेरिएबल्स हैं वो आपके एक्सपेरिमेंट को इफ़ेक्ट ना कर सकें। आप जिन 2 चीज़ों का रिलेशन देख रहे हैं, जस्ट वही 2 चीज़ें आप वहाँ पर मौजूद होनी चाहिए। रैंडमाइजेशन, रैंडमाइजेशन है कि जब आपने कंट्रोल और एक्सपेरिमेंट ग्रुप को सिलेक्ट करना है तो आपने रैंडम सिलेक्शन करनी है, क्योंकि जब रैंडम सिलेक्ट आप करेंगे तभी वहाँ पर इंटरनल वैलिडिटी ज़्यादा होगी। और रेप्लिकेशन, जब अपनी मर्ज़ी के ग्रुप्स बना लेंगे तो फिर वहाँ पर आपके पास रैंडमाइजेशन चली जाएगी और वैलिडिटी उसकी कम हो जाएगी। रेप्लिकेशन इज़ कंडक्टिंग सब एक्सपीरियंसेस आर मे बी यूज्ड, उस एक एक्सपेरिमेंट के अंदर आप छोटे छोटे और भी एक्सपेरिमेंट्स करते हैं उस एक को प्रूव करने के लिए, इसको हम कहते हैं जी रेप्लिकेशन। The 3 characteristics of experimentation, there is control, randomization and replication. The next slide is experimental research. Experimental research is done for future purposes, ये future के लिए की जाती है, and at least one independent variable is manipulated deliberately, और यहाँ पर जानबूझकर आप एक variable को manipulate करते हैं। Other relevant variable are controlled and the effect on one or more dependent variable is observed. Manipulation refers to the conscious control of independent variable by the researcher through treatment or intervention. इसको इंटरवेंशनल रिसर्च भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो रिसर्चर है वो अपनी मर्ज़ी से इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट कर सकता है। इन अदर वर्ड्स, इट्स अ कॉन्शियस एक्ट बाय द रिसर्चर वेयर ही और शी वेरीज इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड ऑब्जर्व द इफेक्ट दैट मैनिपुलेशन हैज़ ऑन द डिपेंडेंट वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट। जानबूझकर वो उसको चेंज करता है ताकि वो डिपेंडेंट वेरिएबल पर उसका असर देख सके। तो here are types of variables. Independent variable is manipulated. Influential experimental factor, the label independent indicates that this variable can be changed independently of another factors. Independent variable ऐसा variable होता है जो किसी पे डिपेंड नहीं कर सकता, नहीं कर रहा होता, और आप इसी को जब चेंज करते हैं तो आपके डिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज आती है। और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है? वो ऐसा फैक्टर होता है जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के चेंज होने से चेंज होता है, जो उस पर डिपेंड कर रहा होता है। और कुछ वेरिएबल्स ऐसे होते हैं जो
आप अपने एक्सपेरिमेंट में शामिल तो नहीं करना चाहते, लेकिन पोटेंशली हो सकता है दे मे अफेक्ट द आउटकम ऑफ योर रिसर्च स्टडी दैट आर कॉल्ड एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स। तो इन एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स को कंट्रोल करना बहुत ही ज़रूरी होता है, वरना आपके डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट में जो आप काज एंड रिलेशन देख रहे हैं वो आपके रिजल्ट्स गलत आ सकते हैं। द नेक्स्ट इज़ रिसर्च डिज़ाइन। रिसर्च डिज़ाइन क्या होता है? जैसे एक आर्किटेक्ट के लिए एक नक्शा हमारे पास होता है, कौन सी जगह कौन सा आपने मकान बनाना है, कौन सा रूम बनाना है, यहाँ पे क्या सेटिंग होगी। तो इसी तरह रिसर्च डिज़ाइन एक रिसर्चर के लिए उसी मैप की तरह, उसी की तरह काम कर रहा होता है। एक प्लान होता है, वेरिएबल्स विल बी स्टडीड, हाउ दे विल बी स्टडीड एंड देयर एंटिसिपेटेड रिलेशनशिप टू ईच अदर। एक पूरा प्लान है, आपने इसके मुताबिक की रिसर्च करनी होती है। तो बहुत सारे रिसर्च डिज़ाइन हमारे पास हैं, लेकिन हम यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन कौन सा है। It is to the researcher what a blueprint is to an architect. The experimental method is only method of research that can truly test hypotheses concerning cause and effect relationship. Experimental research that can truly test hypothesis concern cause and effect. तो hypothesis को आपने यहाँ पर टेस्ट करना होता है। Experimental design developed to reduce biases of all kinds. तो इसीलिए एक्सपेरिमेंट किया जाता है अलग थलग एक लेबॉर्ट्री में, एक ऐसी जगह पे यहाँ पे अदर फैक्टर्स भी वहाँ पर इंटरफेयर ना करें ताकि बाइसेस को ख़त्म किया जा सके। तो यहाँ पर कंपैरिजन ऑफ टू अप्रोचेज़ है, कंपैरिजन ऑफ न्यू एंड एग्जिस्टिंग अप्रोच है, कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट अमाउंट टू सिंगल अप्रोच है, लिटल वर्सेस, ये भी आप यहाँ पर एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन में करते हैं। सिलेक्शन ऑफ रिसर्च डिज़ाइन करने के लिए आपकी नेचर ऑफ एक्सपेरिमेंट कौन सा है, तो आप उसी के मुताबिक आगे हम डिज़ाइन पढ़ेंगे। तो नेचर देखेंगे, मेन पर्पस ऑफ एक्सपेरिमेंट, टाइप्स ऑफ वेरिएबल टू बी मैनिपुलेटेड, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ डेटा, व्हाट इज़ कॉम्पिटेंस लेवल ऑफ द एक्सपेरिमेंटल। तो एक्सपेरिमेंट करने वाला जो है उसका कॉम्पिटेंसी लेवल भी ये आपने मद्देनज़र रखना होता है, कोई कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन आप यूज़ कर लें और आपको यूज़ करना ही ना आए। टाइप्स ऑफ रिसर्च डिज़ाइन हमारे पास 3 हैं: प्री एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन, ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइंस एंड क्वाजी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन। लेट्स डिस्कस वन बाय वन। Types of research design: pre-experimental design, no control, no randomization। ना ही इसमें आपने कंट्रोल करनी होती हैं चीज़ें और ना ही इसमें रैंडमाइजेशन, यानी जो रैंडमली सिलेक्टेड ग्रुप्स भी इसमें नहीं होते। तो ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन ही हमारा असल डिज़ाइन होता है जिसमें कंट्रोल भी है और रैंडमाइजेशन, दोनों करैक्टरिस्टिक पाई जाती हैं। क्वाजी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन में कंट्रोल तो है, बट जो सैम्पलिंग आप ग्रुप सेलेक्ट करते हैं वो रैंडमली आप सिलेक्ट नहीं करते। जो प्री एक्सपेरिमेंटल, नो कंट्रोल नो रैंडमाइजेशन; ट्रू एक्सपेरिमेंटल, कंट्रोल प्लस रैंडमाइजेशन; and quasi experimental, control but no randomization. True experimental research design, randomization leads toward the limiting of any pre-existing differences among the groups. एक ग्रुप्स वेरी हाई है, दूसरा वेरी लो है, वहाँ से आप सैम्पलिंग करेंगे तो बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस होंगे। तो इनको ख़त्म करने के लिए आपने क्या करना है, रैंडमाइजेशन करनी होती है। अगर एक ही जगह से आप कर लेंगे तो आपके पास सही डेटा नहीं आएगा, रैंडमली सिलेक्ट आपने करने हैं। Due to control, it can be confidently determined that the effect on dependent variable is directly due to the manipulation of independent variable. तो control एक ऐसा एलिमेंट है जो ये श्योर करता है कि जो आपके डिपेंडेंट वेरिएबल पे इफ़ेक्ट है वो जस्ट इंडिपेंडेंट का है, किसी और एक्सट्रेनियस वेरिएबल का नहीं है। इसको कंट्रोल कहा जाता है। और बोथ दीज मीन रैंडमाइजेशन एंड कंट्रोल लीड्स टुवर्ड जनरलाइजेशन ऑफ रिजल्ट्स। ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइंस हमारे पास हैं: पोस्ट टेस्ट ओनली कंट्रोल एज द नेम सजेस्ट, प्री टेस्ट, पोस्ट टेस्ट ओनली कंट्रोल डिज़ाइन, सोलमन 4 ग्रुप डिज़ाइन, फैक्टोरियल डिज़ाइन,
block design and crossover design. Let's discuss one by one. पोस्ट टेस्ट मीन कि आपने आखिर पे एंड पे एक टेस्ट आपने लेना होता है, और यहाँ पे आपके पास एग्जांपल में देख लें कि रैंडमली सिलेक्टेड आपके पास दो ग्रुप्स हैं, एक को आपने ट्रीटमेंट करना है और कंट्रोल जो है उस पे आपने ट्रीटमेंट नहीं करना, और फिर आपने पोस्ट टेस्ट लेके उस रिज़ल्ट्स को कंपेयर करना है कि जिन पे ट्रीटमेंट नहीं हुआ और जिन पे ट्रीटमेंट हुआ है उनके दरमियान कोई डिफरेंस है या नहीं. रैंडमली असाइन टू ग्रुप्स होते हैं, एक्सपेरिमेंटल एंड नीदर ग्रुप इज़ प्री टेस्टेड. प्री टेस्ट इसमें होता ही नहीं है. द ट्रीटमेंट इज़ अप्लाइड टू द एक्सपेरिमेंटल ग्रुप. एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को आप ट्रीटमेंट देते हैं और कंट्रोल को नहीं देते. दिस टाइप ऑफ डिज़ाइन इज़ कॉमन व्हेन नॉट पॉसिबल टू प्री टेस्ट द सब्जेक्ट. जब प्री टेस्ट आप नहीं कर सकते तो आपने पोस्ट टेस्ट डिज़ाइन यूज़ करना होता है. नेक्स्ट इज़ प्री टेस्ट एंड पोस्ट टेस्ट ओनली कंट्रोल डिज़ाइन. द प्री टेस्ट पोस्ट कंट्रोल डिज़ाइन रिक्वायर्स एटलीस्ट टू ग्रुप्स. इसमें हमारे पास दो ग्रुप्स होते हैं. ईच ग्रुप इज़ फाउंड बाई रैंडम असाइनमेंट. ये तो पहले ही रैंडमाइजेशन लाजमी है इसमें. बोथ ग्रुप्स आर एडमिनिस्टर्ड अ प्री टेस्ट. दोनों का प्री टेस्ट लिया जाता है. ईच ग्रुप रिसीव्स अ डिफरेंट ट्रीटमेंट. यहाँ देखें, यहाँ पर एक ग्रुप को भी आपने ट्रीटमेंट दिया, यहाँ पे भी कंट्रोल ग्रुप जो इसको भी आपने ट्रीटमेंट दिया. देन आप पोस्ट टेस्ट लेते हैं और रिज़ल्ट्स को कंपेयर करते हैं. तो रिज़ल्ट्स कंपेयर क्यों करते हैं? इफ़ेक्टिवनेस चेक करने के लिए अपने ट्रीटमेंट की, क्या उसकी कोई इफ़ेक्टिवनेस हुई या नहीं हुई. तो एक पहले ग्रुप पे क्या हुआ और दूसरे पे जब और मेथड यूज़ किया उससे क्या हुआ. सोलमन 4 ग्रुप डिज़ाइन. देयर आर 2 एक्सपेरिमेंटल ग्रुप एंड 2 कंट्रोल ग्रुप्स. तो 2 एक्सपेरिमेंटल, ओनली 2 ग्रुप्स आर प्री टेस्टेड. 2 ग्रुप्स को आपने प्री टेस्ट कर लिया और फिर आप क्या करते हैं, 1 प्री टेस्टेड एंड 1 अनप्री टेस्टेड ग्रुप रिसीव द ट्रीटमेंट. यहाँ ये देखें, एक ये प्री टेस्टेड वाला ट्रीटमेंट ले रहा है और यहाँ पर प्री टेस्ट के बग़ैर वाला ट्रीटमेंट ले रहा है. ऑल 4 ग्रुप विल रिसीव द पोस्ट टेस्ट. लेकिन पोस्ट टेस्ट आप सबका लेंगे. तो जब आप पोस्ट टेस्ट लेंगे, द इफेक्ट ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल इरनी ऑब्जर्व्ड आर देन कंपेयर टू द इफेक्ट्स ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑन द डिपेंडेंट वेरिएबल एज सीन इन द पोस्ट टेस्ट. This method is really a combination of previous 2 methods. It is used to eliminate potential source of error. के लिए ये आप यहाँ पे इसको यूज़ करते हैं अगर ये ख़तरा. Randomized block, या मैंने एक वर्ड लिखा है स्ट्रेटिफाइड. जब आपके पास कुछ इस तरह की पॉपुलेशन हो जिसमें जो डिफरेंसेस उसमें बहुत ज़्यादा हों, तो आप फिर उनको स्ट्रेटा यानी होमोजीनियस ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं. वहाँ पे आप सैम्पलिंग करते हैं. रैंडमाइज्ड ब्लॉक, रैंडम सैम्पलिंग की बुनियाद पे आप ब्लॉक बनाते हैं, उनको आप रिज़ल्ट्स फिर उनके चेक करते हैं. देयर आर लार्ज नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंटल ग्रुप्स. द रैंडमाइज्ड ब्लॉक डिज़ाइन में बी यूज टू ब्रिंग सम होमोजेनिटी टू ईच ग्रुप. एज हमने कर ली 3 to 5 एज एक अलग ग्रुप है, 6 to 9 एंड 10 to 12 एक अलग ग्रुप हमारे पास. रैंडमाइज्ड ब्लॉक डिज़ाइन ये ऐसा डिज़ाइन है आप कब यूज़ करते हैं, इफ़ देयर आर लार्ज नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंटल ग्रुप्स. द रैंडमाइज्ड ब्लॉक डिज़ाइन टू ब्रिंग सम होमोजेनिटी टू ईच ग्रुप. इंटरनल होमोजेनिटी इसकी करेक्टरिस्टिक्स होती हैं. ये जो तमाम ग्रुप्स हैं इनमें इंटरनल होमोजेनिटी होती है. आप उन पर एक्सपेरिमेंट्स करते हैं और उनके रिज़ल्ट्स देखते हैं. नेक्स्ट हमारे पास फैक्टोरियल डिज़ाइन. द रिसर्चर मैनिपुलेट्स 2 or more इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को ही, 2 को जब मैनिपुलेट करता है, एग्जांपल में हम देखेंगे, उन्हीं को फैक्टर कहते हैं और फिर उनका इफेक्ट देखता है कि उसका क्या इफेक्ट हुआ. दिस डिज़ाइन अलाउज फॉर द टेस्टिंग ऑफ 2 or more हाइपोथेसिस इन अ सिंगल प्रोजेक्ट. फॉर एग्जांपल, द स्टडिंग द इफेक्ट ऑफ सनलाइट on the growth of plants daily and weekly with low and high sunshine. अब low sunshine हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और हाई सनशाइन भी. तो लो से क्या होता है, हाई से क्या होता है, और लो से डेली, लो से वीकली, फिर हाई से डेली और हाई से वीकली. तो इसको फैक्टोरियल डिज़ाइन कहा जाता है जब आप 2 वेरिएबल्स को यूज़ करेंगे इंडिपेंडेंट को. क्रॉस ओवर डिज़ाइन और रिपीट मेयर डिज़ाइन, ये एक ऐसा डिज़ाइन होता है जिसमें क्रॉस ओवर करते हैं, यानी जो आप ट्रीटमेंट का जो ऑर्डर है उसको चेंज कर देते हैं.
Subjects in this design are exposed to more than one treatment and subjects are randomly assigned to different orders of the treatment. तो सब्जेक्ट क्या होता है, सैंपल का हर जो जितने सैंपल्स होते हैं हर सैंपल को जो है वो सब्जेक्ट कहा जाता है, जो सैंपल का पार्ट होता है वो सब्जेक्ट होता है। तो उसको आपने जब ट्रीटमेंट देने हैं तो आपने ट्रीटमेंट ए, ट्रीटमेंट बी, ट्रीटमेंट सी, 3 है आपके पास। तो पहले आप सब्जेक्ट 1 को क्या करेंगे, ट्रीटमेंट ए देंगे, फिर ट्रीटमेंट बी, और 2 को क्या करेंगे, ट्रीटमेंट बी पहले। यानी ट्रीटमेंट जो रैंडम होगा वही आपका क्रॉस ओवर डिज़ाइन कहलाता है। एडवांटेजेस ऑफ ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन, एस्टेब्लिश द काजल रिलेशनशिप, ये काजल रिलेशनशिप के लिए यूज़ होता है, स्पेशली इन्वॉल्विंग फिज़िकल ऑब्जेक्ट्स के लिए। कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में आप प्योर कर सकते हैं, मतलब जब इन्वायरमेंट कंट्रोल है तो आप प्योर रिजल्ट्स हासिल कर सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन जो आप पास्ट में नहीं कर सकते वो आप लेबॉर्ट्री में क्रिएट कर सकते हैं। और शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम और फ्री फ्राम प्रेशर एंड रियल लाइफ सिचुएशन से आप दूर ये एक्सपेरिमेंट कर। मोर कंसंट्रेशन, कोई आपको डिस्टर्ब करने वाला नहीं होता, एक्सट्रेनियस वेरिएबल नहीं है, तो आप वहाँ पे इजीली काम कर सकते हैं। तो नेक्स्ट इज़ डिसएडवांटेजेस ऑफ ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन। तो मोस्ट ऑफ द टाइम द रिजल्ट्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन कांट बी रेप्लिकेटेड इन स्टडीड कंडक्टेड इन ह्यूमन बीइंग्स ड्यू टू एथिकल प्रॉब्लम्स। अब एक ह्यूमन बीइंग एक मेडिसिन से जो है उसकी जान चली गई तो दोबारा वो एक्सपेरिमेंट आपको नहीं करने देंगे। डेंजर टू फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल हेल्थ, ये भी उससे रिलेटेड है। और इफ़ वेरिएबल्स हैव नो वैलिड मेयरेबल क्राइटेरिया, वेरिएबल्स को मेयर ही नहीं कर सकते, कोई क्राइटेरिया आप सेट नहीं कर सकते, तो फिर भी ये एक डिसएडवांटेज है। कुछ वेरिएबल्स ऐसे हैं जैसे लॉन्गर पीरियड ऑफ स्टडी के लिए आप कुछ वेरिएबल्स सेलेक्ट करते हैं और जो काम सालों में होना था वो आपने महीनों में या दिनों में करने की कोशिश करते हैं, तो वो रिज़ल्ट्स पे फ़र्क आ सकता है। इन नेचुरल सेटिंग कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल एक्सटर्नल वेरिएबल को। लैक ऑफ कोऑपरेशन फ्रॉम द सब्जेक्ट साइड, तो अगर आपसे कोऑपरेशन सब्जेक्ट साइड से ना मिल पाए आपको, तब भी एक्सपेरिमेंटर के लिए प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं। आई होप आप के लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होगी। कोई क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।